میں بے حد شکر گزار ہوں خدا کے عظیم بزرگ خادم پادری یعقوب صاحب کے لیے، جن کی وساطت سے میں اس جگہ پر آیا اور خداوند نے بکثرت مجھے یہاں پر استعمال کیا، لوگوں نے برکت پائی۔ اور اس کے بعد پادری مشتاق صاحب کے لیے، جنہوں نے یہاں پر سنا اور انہوں نے مناسب سمجھا اس بڑے خوبصورت پروگرام میں کہ میں آپ سب کے درمیان آؤں اور کتاب اقدس کی منادی کروں۔ اور یہ بڑی خوشائن بات ہوتی ہے کہ خدا انسان سے بات کرے، اور ان کی ساری چرچ ٹیم کے لیے، ایگزیکٹو باڈی کے لیے، تمام انتظامیہ کے لیے میں تہہ دل سے مشکور ہوں۔ آپ نے بڑا اچھا ویلکم کیا، بڑے اچھے طریقہ سے، جو ایک خدام کی عزت ہوتی ہے اس طرح سے آپ نے اس کو سر انجام دیا، کیونکہ لکھا ہے جو میرے بھیجے ہوئے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے۔ بڑا خاص مضمون آج شام میرے ذمہ سونپا گیا ہے، اور وہ ہے راہ نجات، اور یہ ایک بڑا خوبصورت مضمون ہے۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ سب موجود ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ ایسے چلے جائیں، میں چاہتا ہوں آپ ڈیروں برکات حاصل کر کے جائیں، آمین، اپنے خاندان، گھرانے، اپنی زندگی کے لیے، کیونکہ وقت پورا ہو رہا ہے۔ نبوت الحالات دنیا کے یونیورسل تمام چیزیں بتا رہی ہیں خدا کا بیٹا یسوع آ رہا ہے، ہاللویا، اور ہم سب کو تیار ہونا ہے۔ اور کلام ایک ایسا سورس ہے زمین کے اوپر جو ہمیں تیار کرتا ہے، جو ہماری کاٹ چھانٹ اور بہتری کرتا ہے، تاکہ ہم خداوند کے کلام میں سیکھ جائیں اور ایسی پاک دلہن بنے، جب دلہا آئے تو ہم اس کے ساتھ جشن کے اندر اس کے ساتھ استقبال کریں۔ یہ نہ ہو کہ دروازہ بند ہو جائے، پھر ہم آئیں اور پھر کہا جائے کہ جشن ہو چکا، دلہا آ چکا، اب کوئی فائدہ نہیں۔ یہ کلام آپ سنیں، زندگی حاصل کریں، کیونکہ کلام ایک ایسا ٹول ہے اس زمین کے اوپر جو ہمیں خدا تک لے جاتا ہے، ہاللویا۔ ہم سسٹمیٹک تھیولوجی کو پڑھیں، اس کا ایک مضمون ہے ببلالوجی، جسے ہم علم البائبل کہتے ہیں۔ جب ہم بائبل کی ایٹامولوجی دیکھیں تو اس کے کئی معنی بنتے ہیں، مگر اس میں سے ایک معنی ہے بائبل کا، جو ایک مطلب عبرانی میں اسکالر لکھتے ہیں، وہ ہے باب ایل۔ بولے باب ایل، باب ایل، باب کہتے ہیں دروازہ کو، اور ایل کہتے ہیں خداوند کو، یعنی خدا تک جانے کا دروازہ، ہاللویا۔ ہر شخص خدا تک رسائی چاہتا ہے۔ آپ بائبل کو پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ بائبل آپ کی ملاقات خدا کے بیٹے سے کروائے گی، بائبل آپ کی ملاقات انبیاء سے کروائے گی، بائبل آپ کے دکھوں کو شادمانی میں بدلے گی، بائبل آسمان کے بارے میں بتائے گی۔ دنیا کی جتنی کتابیں ہیں وہ رستے بتاتی ہیں۔ آپ الیکٹریسٹی کی کتابیں پڑھیں، وہ رستہ بتائیں گی کہ اس سرکٹ سے اس پنکھے کا کرنٹ پاس ہوتا ہے، اس سے اس بلب کا کرنٹ پاس ہوتا ہے۔ آپ بلیک میجک کی کتابیں پڑھیں، وہ بھی آپ کو رستہ بتائیں گی کہ ان پر چل کر آپ جو ہے وہ جادو سیکھ سکتے ہیں۔ آپ میڈیکل کی کتابیں پڑھیں، وہ بھی آپ کو رستہ بتائیں گی کہ انسان کے کہاں سے جو ہے وہ خوراک ڈائجسٹ ہوتی ہے، بلڈ کن وینز سے سفر کرتا ہے۔ دنیا کی تمام کتابیں رستہ بتاتی ہیں، اور وہ رستے زمینی ہیں اور ایک جگہ پر جا کر بند ہو جاتے ہیں۔ بائبل ایک ہی رستہ بتاتی ہے، اور وہ آسمان کا رستہ ہے، ہاللویا، ایک ہی رستہ بس۔ میں نے بتایا کہ سست آدمی برکت کھو دیتا ہے، اگر تالیاں یسوع کے لیے تو پھر دل کھول کر زوردار ہاللویا۔ بائبل سے محبت کریں، اس کو پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں، ایمان لائیں اس کے اوپر، یہ آپ کو خداوند سے ملوائے گی، کیونکہ اس کا مطلب ہی بابل ہے، خدا تک جانے کا دروازہ۔ آئیے گا ہم سب کتاب مقدس کی تلاوت کریں، رسولوں کے اعمال کی کتاب اور اس کا 4واں باب اور اس کی 12ویں آیت مقدسہ۔ جن کے پاس خداوند کا کلام ہے کھولیے گا۔ تلاوت سے پہلے مائیں بہنیں بیٹھیاں بال دوپٹوں میں چھپائیں، شاباش بھائی سیدھے ہو کر بیٹھیں، جس طرح کہتے ہیں پنجابی چنٹ کے بہو، جب تک تلاوت ہوتی ہے آپ سب کی آنکھیں اور سر جھکا ہونا چاہیے۔ مائک بالکل ٹھیک ہے، ٹریک کی آواز تھوڑی کم کر دیں۔ آئیے گا ہم بڑی توجہ سے تلاوت سنیں۔ یوں لکھا ہے، اور کسی دوسرا کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں۔ کتاب مقدس کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا سبب ہو۔ اس سے پہلے کہ میں راہ نجات پر بات کروں، حقیقی آزادی اور چھٹکارے اور مخلصی پر بات کی جائے تو کلام میں لکھا ہے، جب آپ تبلیغ و ارشاد فرما رہے تھے، کسی عورت نے کہا مبارک ہے وہ دودھ جو تو نے پیا، اور مبارک ہے وہ رحم جو اس میں تو پلا۔ مسیح نے کہا اس سے بھی زیادہ مبارک وہ ہے جو میرا کلام سنتے ہیں، ہاللویا۔ آپ تعلیم دے رہے تھے، اگر تعلیم یسوع کے تو پھر زوردار، پھر پچھلے بھی کھلوتے بھی بیٹھے بھی سارے بناؤ، ہاللویا۔
اور ایک دفعہ آپ تبلیغ فرما رہے تھے، کسی نے آ کر کہا مالک آپ کے ماں اور بھائی باہر پوچھتے ہیں. آپ نے کہا میرے ماں اور بھائی وہ ہیں جو میرا کلام سنتے ہیں. آپ یقین جانیں آپ کو بات نہیں سمجھ آئی. میں ہر بدھ یہاں آتا ہوں، کیوں نہیں؟ یہاں بائبل کلاس ہوتی ہے، میں 3-4 گھنٹے یہاں پر رہتا ہوں اور میرا آنا یہاں پر ہوتا ہے. اور اکثر میں سنڈے سروس میں بھی پادری یعقوب صاحب کے چرچ میں پچھلے سنڈے بھی منادی کر کے گیا ہوں. اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے، بات نہیں سمجھ آئی، آپ مجھ سے بات کریں تاکہ میں آپ کو ریفرنس دوں، کتابیں دوں، آپ اس میں سے پڑھیں، حاصل کریں اور نجات حاصل کریں. ہاللیلویا. ہم نے یہاں پر بڑی خوبصورت بات پڑھی ہے اور یہ مشہور زمانہ آیت ہے. ہم جب سنڈے اسکولوں کے اندر ہوتے ہیں ہمیں یہ آیت آج پر یاد ہے. کلام کہتا ہے کسی دوسرا کے وسیلہ سے نجات نہیں ہے، کیونکہ آسمان کے تلے زمین کے اوپر کسی کو کوئی نام نہیں بخشا گیا. اور آپ سب جانتے ہیں وہ نام خدا کے بیٹے یسوع کا ہے. ہاللیلویا. اور کلام نے ایک بات نوٹ کر دی ہے کہ نجات اور چھٹکارا اور مخلصی اور رہائی اور سوتے رہو اور فلاح اور جتنی نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ صرف ایک کے وسیلہ سے ہے. یعنی کوئی سیکنڈ نہیں ہے، نہ کوئی آسمان پر ہے، نہ زمین پر ہے، نہ زمین کے نیچے ہے، نہ کوئی دیوی ہے، نہ کوئی دیوتا ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی ٹیکنالوجی ہے، نہ کوئی ریسرچ سینٹر ہے، نہ کوئی سائنس ہے. یعنی کوئی اور نہیں ہے. اگر آپ کو نجات پانی ہے تو آپ کو مالک کے قدموں میں آنا پڑے گا. ہاللیلویا. بائبل مقدس کو جب ہم پڑھیں اور اس پوری دنیا کو اوورآل سروے کریں تو انسانوں کو 2 حصوں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے. سب سے پہلے انسان کو اہل مذہب کہا جاتا ہے اور دوسرے نمبر پر لا مذہب. یعنی جو اہل مذہب ہے انہیں انگلش کے اندر جو ہے ایتھیسٹ یا تھیسٹر کہا جاتا ہے اور جو لا مذہب ہے انہیں ایتھیسٹ کہا جاتا ہے. اب لا مذہب وہ ہے جو خدا کو نہیں مانتے، کہ یہ نہیں مانتے کہ خدا ہے یا اس کا کوئی وجود ہے، اور وہ اپنی زندگی، اپنا طریقہ، اپنے خیال، اپنی آئیڈیالوجی، اپنی مرضی، اپنی جبیت، اپنی سوچ، اپنے معاملات کے تحت گزارتے ہیں. مگر جو اہل مذہب ہے وہ جب آسمان کو دیکھتے ہیں، زمین کو دیکھتے ہیں، آبشاروں کا پانی دیکھتے ہیں، وہ سمندر دیکھتے ہیں اور جھرنے دیکھتے ہیں، موسموں کا بدلنا دیکھتے ہیں، آنا اور جانا دیکھتے ہیں، انسان کی طبیعت اور حالاتوں کو دیکھتے ہیں، ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ کہنے پر کہ اس کو بنانے والی کوئی پاک ذات ہے. ہاللیلویا. اور جب وہ ریسرچ کرتے ہیں تو ان کی تلاش آسمان کے خدا پر آ کر ختم ہوتی ہے. مگر خدا کے لوگوں، اب جو اہل مذہب لوگ ہیں ان کو 2 حصوں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے. یعنی اہل مذہب کی 2 بڑی اقسام ہے. ایک ہے سامی النسل مذاہب اور دوسرے ہے غیر سامی النسل مذاہب. یعنی سامی النسل مذاہب وہ ہے جو خدا کو زندہ مانتے ہیں اور آسمان پر مانتے ہیں. انہیں مذہب توحید بھی کہا جاتا ہے یا مذہب ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے. اور یہ خداوند کو زندہ اور آسمان پر مانتے ہیں. اور یہ زمین پر 3 بڑے مذہب ہے. سب سے پہلے یہودیت، پھر مسیحیت اور پھر اسلام. اور یہ اپنا جو کنڈا ہے، شجرہ ہے، یہ ابراہیم سے ملتا جلتا پیچھے لے جاتے ہیں. اور ان کی نجات کا دار و مدار ایک مسیح کے اوپر ہے. انتظار ہے کہ وہ آئے گا اور انسان کو فلاح اور نجات دے گا. اور اب یہ جو سامی نسل مذاہب ہے ان کا جا کر شجرہ مقدس نوح کے بیٹے سین کے ساتھ ملتا ہے اور وہاں سے یہ لفظ لیا جاتا ہے سامی نسل مذاہب. مگر اس کے برعکس ہے جو غیر سامی نسل مذاہب ہے، ایسے مذاہب جو خدا کو زندہ نہیں مانتے، کئی بتوں، دیوی دیوتاؤں اور اپنے خیال، پہاڑوں، ستاروں اور تاروں کی پوجا کرتے ہیں. جو بھی ان کے سامنے چیز آتی ہے وہ ان کو مانتے ہیں. مگر یاد رکھیے گا، چاہے اہل مذہب لوگ ہیں یا لا مذہب لوگ ہیں، چاہے سامی نسل مذاہب لوگ ہیں یا غیر سامی نسل مذاہب لوگ ہیں، ہر ایک مذہب کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان کو نجات ملنی چاہیے. اب جو لفظ نجات ہے اس کی جب ہم اعتماد بھی دیکھیں، اس کا مطلب ہے رہائی اور مخلصی یا چھٹکارا یا آزادی. مگر جب ہم پورے مصاحفوں کا مطالعہ کریں تو یہودی بھی کہتے ہیں انسان کو نجات ملنی چاہیے اور وہ اپنی کتاب میں اسے یہوشوا کا نام دیتے ہیں. اور کرسچن اپنی تھیولوجی کے مطابق اس کو سوتران کہتے ہیں اور اسلام میں اسے فلاح کا نام دیا جاتا ہے. اور مؤذن دن میں 5 مرتبہ اعلان اور اذان فرماتا ہے حی علی الفلاح، یعنی آؤ نجات اور کامیابی کی طرف. اور اس کے بعد اگر ہم ہندوؤں کو پڑھیں تو وہ اسے سنسکرت کے اندر مرکش کہا جاتا ہے. ہندو اسے مکتی یا نروان کہتے ہیں. یعنی ہر مذہب کے اندر نجات کا عقیدہ، نجات کا خیال، نجات کی بات یا نجات کی سوچ پائی جاتی ہے. اگر ہم یہودیوں کو پڑھیں تو یہودی کہتے ہیں انسان کو نجات پانے کے لیے 4 چیزیں کرنی چاہیے پھر وہ نجات حاصل کر سکتا ہے. پہلے نمبر پر انسان کو خداوند کا علم ہونا چاہیے. یعنی جو آسمان کا خدا ہے، نشروں کا خدا ہے، آسمان پر ہے، جسے یہوہ، مقدس، رفع، نصیر، حراوہ، چنڈاول کہا جاتا ہے، اس کو
पर ईमान और इत्तेकाद और उसका इल्म हासिल करना चाहिए। इसलिए वो अपने बच्चों को तीसरे पढ़ने के बाद यहोवा के नाम सिखाते कि तीसरा बर्थडे गुजरा कि बेटा कहो यहोवा कदूस, यहोवा सबूत, यहोवा आला, यहोवा नसी, यहोवा हरावे, यहोवा जमावे, अलहीम, अबूही, अल शदाई, अडोनाई। उनके बच्चे इनको पढ़ते क्योंकि वो जानते थे नजात हासिल करने के लिए सबसे पहला टूल जो है वो खुदावंद का नाम लेना है। वो अपने बच्चों को मदरसे छोड़ते, उनके रबी उनको लिखवाते, उनके आगे तख्तियां रखते, तख्तियों के ऊपर पूरने डालते, उसके ऊपर शहद लगाते, शहद को सुखा देते और कहते बच्चे लिखो। अब वो सूखे शहद पर लिख ना पाते तो जब वो लिखते तो कहते रबी ये सूखा है, लिखा नहीं जा रहा, तो रबी कहते कलम मुंह में डाले तो लिखो। वो कलम मुंह में डालते और लिखते, कलाम के ऊपर लिखते, शहद जुबान को लगता तो रबी कहते बेटा कहो मुझे कलाम मिला है वो शहद के टपकों से भी ज्यादा मीठा है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने वो रोटी देखी है यरूशलेम से मुझे आई, यहूदी माएं अपनी रोटियों पर भी शरीयत लिखती है कि शमा इस्राइल अडोनाई एलोहीना। जब बच्चे खाते हैं तो माएं कहती हैं बेटा कहो मुझे कलाम मिला है और मैंने नोश किया है। जब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो 1 2 3 4 सिखाते हैं। अगर याद रखेगा जब अपने बच्चों को 1 2 सिखाते तो कहते बेटा कहो ए, इसका मतलब खुदा एक है। बेटा कहो दो, हमने पत्थर की दोनों पर 10 हुक्म दिए थे। बेटा कहो 3, हमारे बाप 3 है, अब्राहम इसहाक और याकूब। बेटा कहो 4, हमारी 4 माएँ हैं, एक अब्राहम, एक इसहाक और 2 याकूब की बीवियां हमारी 4 माएँ हैं और शरीयत की 5 किताबें हैं। और कहो 6 तो याद रखना हमारी शरीयत की तफसीर के 6 हिस्से हैं। बेटा कहो 7 दिन का हफ्ता। बेटा कहो 8 दिन के बाद हम खत्म करते हैं। बेटा कहो 9 माह बाद पैदाइश होती है। बेटा कहो 10, हमें 10 हुक्म दिए गए। बेटा कहो 11, हमारे जय्यद ने ख्वाब में 11 सितारे देखे। बेटा कहो 12, हम कबायली तौर पर 12 है। बेटा कहो 13, हमारे खुदा की 13 इलाही सफात है। और जब ऐसी बच्चों की तरबियत करते हैं यकीन जाने में बहुत नजर आता है। यहूदियों के बच्चे उठाता है और यरूशलेम से लेकर बाबुल के अंदर ले जाता है। साथ रखे वो दानियल, सदरक और मीशक को अबदनगो का मुल्क बदलता, सूबा बदलता, जुबान बदलता, नाम बदलता, खुराक बदलता, मगर दानियल का खुदा कोई नहीं बदल सका। हालेलुया। और उनके अंदर कोई इल्म आ जाता है, यानी वो इस बात पर ध्यान करते हैं कि हमें उसके बारे में सीखना है। हालेलुया। आप कितनी कोशिश कर रहे हैं कि हम यीशु के बारे में जाने, बस हमें कहने पता है यीशु शिफा देता बस, यीशु शाफिया बस। अगर याद रखे वो सबसे बढ़कर आपका दूल्हा है, वो आपका मालिक है, शाफियत जहाँ है, कामिल जहाँ है, मुकबरे सदाकत है, पैगंबर दो हक है, वो आने वाला है और जमीन पर अपनी निजात के काम को करने वाला है। अब जितना उसके अंदर खुलते जाएंगे लोग इस बात पर अवां करता जाएगा यीशु कौन है, यीशु कौन है, यीशु कौन है। हालेलुया, हालेलुया। आवाज कम है। हालेलुया। यहूदी कहते थे दूसरी बात यह है कि जो मूसा ने शरीयत दी है उस पर मुकम्मल ईमान रखे। पहली बात खुदा का इल्म, दूसरी बात मुकम्मल शरीयत पर ईमान, और तीसरी बात आप गुनाहों से तौबा करें, और चौथी बात जो कुर्बानियां लिखी है वो अदा करे तो इंसान नजात पा जाएगा। ये यहूदियों का नजरिया है। इस्लाम के अंदर कुरान शरीफ में सूरत सजदा 19वीं आयत में लिखा है जो लोग ईमान लाए, नेक अमाल करते हैं, उनके रहने के लिए बाग है, ये मेहमानी उनके कामों का अजर है जो वो करते रहे हैं। हम जब हिंदुओं को पढ़े तो हम एक गीत गाते हैं और वो ये है गंगा जमुना तीरथ नहाए तो गया गया की गंगाए। वो यहूदी हिंदू ये मानते हैं कि आप एक हिंदुस्तान में दरिया है गंगा और जमुना, जब आप वहां जाकर नहाते हैं तो आप मुक्त हो जाते हैं। और इसी तरह तिब्रियास एक नदी है बनारस के अंदर, अगर आप वहां पर भी जाए तो नहाए तो मुक्त हो जाएंगे। इसी तरह गया गया यानी गया एक जंगल का नाम है, आप वहां जाकर तपस्या रियासत इबादत करें तो आप अपने गुनाहों से मुक्ति हासिल कर सकते हैं। ये हिंदुओं का नजरिया है। अगर उसके अलावा हिंदू कहते हैं कि भगवान का कोई इल्म और मेडिटेशन में आना चाहिए। उसके बाद वो 4 आश्रम कहते हैं ये पूरे करो तो नजात मिलेगी। पहला आश्रम धर्मा आश्रम है और इसके अंदर है खुदा का इल्म। दूसरे नंबर पर है साधु आश्रम यानी सादा जिंदगी गुजारो, और तीसरे नंबर पर है गृहस्थ आश्रम यानी तुम्हें भगवद गीता गुरु ग्रंथ की तालीम भी आनी चाहिए, और संन्यास आश्रम यानी कि तुम कहीं जाकर संन्यास ले लो तुम्हें नजात मिल सकती है। उसके बाद इस हिंदुओं से एक निकला हुआ आर्य मज़ाहिब, और इसका बानी पंडित लेखराम अपनी किताब सत्यारस प्रकाश में लिखता है कि जो शख्स अच्छे काम करेगा वो नजात हासिल कर सकता है। और इसी मजहब से एक और मजहब निकले है, उन्होंने उससे खाने और उन्होंने बानी का नाम बाबा गुरु नानक के जो वो धरती के उत्ते आए उन्हें आके अपनी गल्लां
शादियां की दिया ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਨਜਾਤ ਫਲਾ ਸੋਤੇ ਰੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਆਪੇ ਬੀਜੇ आपे ही खा तो नानक मुक्ति आवन जा यानी जो आप जमीन पर करेंगे वो फलदार होगा और जो खाटेंगे और उसी की देश पर आपको निजात मिलेगी। बाबा जी होर लिखते ने जो वड्डा जाने आप नानक नजरी करमी दा यानी ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਜਾਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਜਾਤ चाहिए मगर ख्याल रहे कि नजात चाहिए किससे कोई धंधा है कोई बड़ी बात है कोई सलाह है कोई बहार है कोई ऐसी चीज है हम मसद ये चाह रहा है नजात फलाह सोते रोन और सतवाए मेहमान चाहिए मगर चाहिए किससे कौन ऐसी बला है। आइएगा बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं। बाइबल मुकद्दस को जब हम सिस्टमैटिकली तौर पर पढ़े यानी जब पैदाइश की किताब को पीछे से या सिस्टमैटिकली तौर पर पढ़े तो पता चलता है आसमान तो खुदा ने जमीन और आसमान बनाने से पहले आसमानों पर रोशन किया था क्योंकि लिखा है मैंने बनाए आलम से पेशतर तुम्हें चुना और यानी आलम नहीं बनाए आसमान नहीं बनाया जमीन नहीं बनाई और मैंने तुम्हें चुना और मुकर्रर किया है और इसके अंदर पाक तस्वीर के तीनों अकानीम शामिल हुए और इंसान की फलाह पर बात की कि नजात कैसे देनी है। होपोलिटिक्सी न्यूमरोलॉजी यहूदियों का निजाम ये कहता है कि यहूदी लोग जो है वो मानते हैं कि खुदाबंद ने 25 मार्च रोज इतवार को जमीन और आसमान बनाने का आगाज किया। खुदा डे बाय डे तमाम चीजें बनाता गया और चीजें मारे से वजूद के अंदर आती गई। 5 दिन में सारी दुनिया बनाई मगर छठे दिन उसको बनाया जिसके लिए दुनिया बनाई। कलाम अक़दस में लिखा है आदम का पुतला लिया और आदम के पुतला लेकर उसको बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का शाबाश लिखा कहानी नथनों में जिंदगी का। आप देखेगा इंसान नाक से कान से सॉरी नाक से नहीं कान से आंखों से हाथों से पाँव से हर एक जिस्म के हिस्से से गुनाह करता है माशवर नाव के जो यहाँ से इंसान के अंदर खुदा ने अपना कलिमा डाला है हालेलुया जिससे वो जीती जान हुआ। इंसान जब जीती जान हुआ कलाम बताता है खुदा ने मशरूम की तरफ अदन में बाग लगाया और बाग अदन के अंदर रखा मगर याद रखें जब खुदा तीसरे दिन के अंदर था आपने फरमाया जमीन तमाम पौधों को उगाए जमीन ने उगा दिया। आप 5वें दिन में दाखिल हुए आपने कहा पानी ना कसरत जानदारों को पैदा करे। इसका मतलब है पौधे बनाने के लिए जमीन से बात हुई जानदार बनाने के लिए पानी से बात हुई मगर जब मेरे और आपके जरूरत को बनाने की बारी आई ये ऑनरेबल बात है। फरमाया आओ हम इंसान को अपनी शक्ल और अपनी शबीह पर पैदा फरमाए और फरमाया और खुदा के लोगों बाइबल मुकद्दस बताती है जब बताया जाता है अब देखिए लगा अगर पौधे बनाने के लिए जमीन से बात की गई आपने पौधा जमीन से उखाड़े वो मर जाएगा सूख जाएगा खत्म हो जाएगा। इसी तरह आप अगर किसी पानी को मछली से पानी से बाहर निकाल दे मछली वो भी मर जाएगी। आप किसी जानदार को पानी ना पिलाएं तो मर जाएगा क्योंकि वो उसकी बेसिक्स है। अगर आप यीशु से जुदा हो गए कलाम कहता है तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि मैं तुम्हारी बेसिक्स हूँ मैं तुम्हारी नींव हूँ जिसके ऊपर मैंने तुम्हें खड़ा किया है। खुदा के लोगों बाइबल बताती है खुदा ने मशरिक की तरफ अदन में बाग लगाया हमारे जरूरत को वहां पर रखा। बाइबल बताती है खुदावन ने देखा सब अच्छा है सब कुछ परफेक्ट है। खुदावन ने आदम से चंद बातें की और उन्हें रखा। बाइबल के उलिमा न्यूमरोलॉजी के मुताबिक ये फरमाते हैं आदम 15 साल अकेले रहे। इसका मतलब है बीबी 15 साल छोटी है आदम से और ये दूसरी पैदाइश है बाइबल के मुताबिक। ये बड़े बड़े स्कॉलर इस बात को लिखते हैं। कलाम कहता है खुदावन ने देखा सब अच्छा है मगर आदम का अकेला रहना अच्छा बोले आदम का अकेला रहना अच्छा बातियों चुप करना। आगे लिखा मैं उसके वास्ते एक मददगार किन्ने बंदे बोलो सारे किन्ने बातियों चुप कर किन्ने मददगार एक मददगार गल तो समझ गए होना समझ आ गई ना कितने मददगार आपके लिए बस एक मददगार उसकी मानिंद बनाऊंगा। कलाम कहता है आदम पर गहरी नींद बैठी गई। नींद के लिए जो इब्रानी वर्ड है वो है ट्राडोमा और ट्राडोमा बेरे हाजरा की वो मेडिसिन है जो किसी मरीज के बैकबोन में लगाकर उसे बेहोश करके ऑपरेट किया जाता है। खुदावन ने एक पसली ली हड्डियों में से हड्डी ली और खूबसूरत सी बीवी बनाकर आदम के पास ले आया। कलाम में लिखा है उसने बीवी पाई उसने तोहफा पाया उस पर खुदा का फिर उस पर खुदा का मैं क्यों क्या कि एक मददगार एक बंदा है बाइबल से उसने 1000 शादियां की हैं। बाइबल कहती है सुलेमान नाम है और 700 शहजादियां ब्याह कर लाया था और 300 हरमें थी उसके बाद। मगर जब अधेड़ उम्र हो गया
اور میں مثال کی کتاب لکھی تو کہتا ہے بیوی خدا کی طرف سے تحفہ ہے. اچھا بیویاں رکھنے والا بندہ کی کہنے ہے بولو سارے بولو بندے طرح سے کھانا کنیا بیوی خدا کی طرف سے جڑا تحفہ ہوں ہے کیوں ہے سمجھ آئیے. بعد میں آپ جو مرضی کرتے رہے وہ گناہ اور ضلالت ہو سکتی ہے. فضل بھی ایک ہی بار ہوتا ہے. آگے سمجھ بچ کی گانڈ چلیے گے. ہاللویا ہاللویا آواز کاٹے ہاللویا چل رہا ہاللویا. سنیے گا اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ خدا باغ عدن میں دونوں کو رکھتا ہے اور کہا پڑھو اور پھولو اور زمین کو مکورو محکوم کرو. تم ہر درخت کا پھل بے روک تو کھا سکتے ہو مگر جو باغ کے بیچ میں ہے نہ اس کا کھانا اور نہ اس کو چھونا. جس دن تو نے کھایا تو مرا. اب ہوتا یہ ہے بائبل مقدس کے عالم یہ کہتے ہیں اور یہ ڈسپنسیشنل اور کووننٹ تھیولوجی کے مطابق یہ ہے یہ پاکیزگی کا زمانہ ماں حوا اور باپ آدم تقریباً 35 سال باغ عدن کے اندر رہے اور یہ پاکیزگی کا زمانہ. خدا ہر روز ان سے بات کرتا. ہاللویا. خدا ہر روز کیا کرتا بولو سارے کیا کرتا مکتی بولو کیا کرتا بات کرتا. مگر ایک دن ایک شکاری آیا وہ آہستہ آہستہ آ رہا تھا. آتا گیا آتا گیا آتا گیا آتا گیا اور آ کر ماں کے پاس کھڑا ہو کر کہتا ہے کیا تم سارے درختوں کا نہیں کھا سکتے؟ کہا نہیں سب کا نہیں جس وقت یہ ایک ہے جس کا ہم نہیں کھا سکتے. اس نے غلط تعلیم انسان کے اندر دی. اور بھائیو آپ کا کام ہے ہوا کی حفاظت کرنا. کیا کرنا؟ حفاظت بھی کرنا نگہبانی بھی کرنا. اگر آپ ہوا اپنی کی حفاظت نہیں کریں گے تو کوئی تیسرا آ کر غلط تعلیم دے گا اور کام خراب ہو جائے گا اور آپ کی حضوری جاتی رہے گی اور آپ کو دامن سے کٹف ہو جائیں گے. اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا ہوا کے پاس آئے آپ اپنی ہوا کی باغبانی بھی کریں اور نگہبانی بھی کریں. ادھر کلام کہتا ہے وہ آیا اب شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا گیا اور یہ تھا گناہ جس کی وجہ سے انسان جکڑا گیا اور گناہ ہوا انسان سے. اب یہ وہ بلا تھی جس سے نجات چاہیے انسان کو اور گناہ معمولی نہیں تھا. گناہ نے سب سے پہلے بائبل میں لکھا ہے خدا آیا آواز دی آیا آدم تو کہاں ہے؟ اس نے کہا خدا میں نے تیری آواز سنی میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا. آپ نے فرمایا کہ تم نے پھل کھایا؟ کہا نہیں مجھے ہوا نے دیا. کیا بیوی تو نے؟ کہا نہیں مجھے سانپ نے. آپ نے تینوں کو باہر نکالا اور کہا کہ تم نے گناہ کیا ہے. اب گناہ کا اثرات یہ ہے کہ تم جب مرد ہو تم لالچ کے اندر رہو گے کتنی مرضی دولت کما لو تمہیں اور بھی کمانے کی رہے گی. کبھی بھی کوئی مرد یہ نہیں کہتا کہ میں نے اب کوئی کام نہیں کرنا. یعنی تمہارے اندر یہ لالچ رہے گی اور تم اپنے خون اور پسینے کی کھاؤ گے اور تمہارے اندر خوف ہوگا اور تم خوف کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے. تم انسائٹی بیماریوں کا شکار رہو گے اور سب سے بڑی بات تم مجھ سے دور ہو جاؤ گے. میں پھر تم سے کبھی نہیں ملوں گا کبھی یہ معاملہ نہیں ہوگا. اور یہی آدم کے ساتھ ہوا. خدا نے اپنے گھر سے نکال دیا اور یہ معمولی بات ہے کہ خدا ہی اپنے گھر سے نکال دے. خدا اپنے پاس سے آدم کو نکال دے. آپ نے بی بی سے بات کی اور کہا تو درد ذیل سے بچہ جنے گی اور تیری ربکت تیرے شوہر کی طرف ہوگی. یعنی ربکت کا مطلب یہ ہے کہ تو چاہے گی کہ میں عورت پر مرد پر حکمرانی کروں مگر یہ لعنت ہے تیرے لیے کیونکہ مرد تیرا سر ہے اور اس کا سر مسیح ہے. تو نے مرد کے تابع رہنا ہے. اور جو عورتیں یہ سمجھتی ہے کہ میں اور میں آپ ٹھیک ہے آپ برابر ہے مگر بعض کاموں میں آپ مرد کے تابع ہے. آپ کو رہنا پڑے گا اور اگر آپ نہیں کرتے تو ربکت آپ کی لعنت ہے جو آپ کو اوپر لے کے جائے گی کہ میں اوپر. جب لکھ دیا گیا ہے کہ عورت کا سر مرد ہے اور مرد کا سر مسیح ہے. ہاللویا ہاللویا. اب یہ معاملہ دونوں پر میں ہوگا. اب مالک نے ابلیس سے کہا کہ تو سانپ سے کہا کہ تو اخلاق چاٹے گا عمر پر. اور یہ گناہ کا اثر درختوں پر ہوا. درختوں کے اوپر پہلے پھل اور پھول لگتے تھے. گناہ کے بعد لکھا ہے اور زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی. یہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹا رہے. یعنی گناہ نے پھل بھی لگتے ہیں مگر کانٹے خزاں پتوں کا گرنا یہ ہونا شروع ہو گیا. اور جانوروں پر اثر کیا ہوا؟ بائبل کے بائبل کھول لیجئے پیدائش کی کتاب کا پہلا باب اور اس کی 30 آیت میں لکھا ہے اور زمین کے کل جانوروں کے لیے اور ہوا کے کل پرندوں کے لیے اور ان سب کے لیے جو زمین پر رینگتے ہیں جن میں زندگی کا دم ہے کل ہری بوٹیاں کھانے کو دیتا ہوں. اور ایسا ہی اس کا مطلب ہے گناہ سے پہلے جانور پھاڑتے نہیں تھے. جانوروں پر یہ اثر ہوا جانوروں نے پھاڑنا شروع کیا اور اب یہ جو گناہ ہے یہ بڑی قسموں کے اندر زمین پر آیا کر رہا تھا. گناہ نے کسی کو نہیں چھوڑا. گناہ کئی قسموں سے انسان کے اندر آیا. کلام میں لکھا گناہ جب بڑھ جاتا ہے تو کیا پیدا کرتا ہے؟ وہ گناہ نے خوف دے دیا.
बीमारियां, मौत, रस्सियां, इंसान की जिंदगी के अंदर लाचारियां, नुकसान, कमियां, घाटे, इन्होंने आकर बसेरा कर लिया। बाइबल बताती है कि खुदावंद ने इन्हें अदन से निकाल दिया कि आप जा सकते हैं। गुनाह ने आगे बढ़ा, जैसे ही ये बाहर आए, कलाम कहता है इसकी नस्ल गुनाह के अंदर, गुनाह अब दो तरह से काम करने लगा। एक था मरूसी गुनाह जो जेनेटिकली इंसान के अंदर आता, और एक था तबई गुनाह जब हम खुद इरादत और उसको करते हैं। ये मामला होने लगे। और आपको पता है गुनाह ये है खुदा की ना मानना, उसके घर ना आना, उसके तजस्सुम से इनकार करना, दुआ ना करना, बाइबल ना पढ़ना, उसका ना वापस देना, खुदावंद को हदिये ना देना, इबादत ना करना, उसके काम को सरंजाम ना देना, उसके हुक्म ना मानना। आप अपने कौल, फेल, इकरार, उठने, बैठने, चलने, फिरने, रूहानी और जिस्मानी एक्टिविटी से कोई भी ऐसा काम जो खुदावंद के खिलाफ करते हैं और वो गुनाह है और वो बवाल जान है आपके लिए। अब ये जो मसला था दुनिया के आगे, तमाम मज़ाहिब के आगे, कि अब ये कोई आए और आकर ये मामलात करे। अब खुदावंद ने जब इन्हें अदन से निकाला, खुदावंद ने एक नजात दरिंदा का वादा किया। अब बाइबल बताती है कि अंबिया का आना शुरू हुआ, नबी आसमानों से आने लगे और इंसान को तसल्ली बख्श पैगाम देने लगे। मूसा आए, तसल्ली दी, तमाम लोग आते रहे और तसल्ली देते रहे। बुजुर्ग दाऊद ने नजात का कॉन्सेप्ट दिया और ज़बूर 40 के अंदर फरमा दिया, तेरे तालिब तू तुम्हें खुश खुरम हो और तेरी नजात की अश्क का नशा तक तेरी तमजीद करते रहेंगे। यानी नबी आकर इंसानों को नजात के बारे में तसल्ली देने लगे कि होगा होगा, मिल जाएगी नजात इन फंदों से, बीमारियों से, लाचारियों से। और याद रखिएगा आप मुल्की तौर पर आजाद हो सकते हैं मगर इब्लीस ने आपकी सोचों को गुलाम किया है। कलाम कहता है जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। आप गुलामी में है और आपको झंडे लहराने का कोई हक नहीं है कि अगर आप गुनाह में है, आप इंसानी के अंदर है, परेशानी के अंदर है, अगर आप चर्च नहीं चाहते कोई आजादी आपकी नहीं है। आपको किसी बड़ी ताकत ने जकड़ा हुआ है कि आप खुदा तक न जाए। अगर आप खुदावंद का हिस्सा खुदावंद को नहीं देते कोई आजादी आपकी नहीं है। आपको किसी ने जकड़ा हुआ है कि आप गपशप करके उसके पैसे में से खाएं और आपको कोई हक नहीं आजादी मनाने का। अगर आप शामतों, लानतों, हरामकारियों, धोखों के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं तो कोई हक नहीं है आपको आजादी मनाने का। और वही तो प्रबंध के अंदर थी, कौन आएगा? और अब तसल्ली पर पैगाम आने लगे कि हाँ नजात दहिंदा आएगा, मालिक आएगा। और कॉन्सेप्ट खोलने लगे, अब निगाह आदम आसमानों की तरफ देखने लगे तो कोई जो आए अब दौड़ आए उठाते हुए, मगर ये तसल्ली बख्श पैगाम नहीं था। मगर एक दिन बड़ा ही तसल्ली बख्श पैगाम खुदावंद ने यशायाह को दिया और कहा जा मेरी उम्मत से जाकर कह कि ये कलाम आया है। हालेलुया, हालेलुया, आवाज काटे, हालेलुया, हालेलुया, पीछे वाले भी हालेलुया, आवाज का मेरे मोटरसाइकिल पे बैठे हुए हालेलुया, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। यशायाह पर कलाम आया, यशायाह आसार लेकर यरूशलेम के अंदर आए और आकर कहने लगे आए अब्राहम के पोतो, इसहाक के पोतो और इस्राएल के बेटो आओ, खुदावंद का पैगाम आया है और पैगाम सुनो। तमाम लोग नबी के पीछे चलने लगे और रब्बे जलील ने कोई कलाम किया है। और आपको पता है जब कोई खादम कलाम लेकर आए आपको उसके पीछे पीछे जाना चाहिए ताकि आप सुने और उस पर अमल करें। उन दिनों में खुदा बड़ा सख्त कलाम करता था और खुदा कभी इन्हें शनाकार भी नहीं कहता, कभी इन्हें फराडी कहता, कभी हरामकार कहता, कभी कहता तुम्हारे अंदर से बादशाह छीन लूंगा। ये बातें इनके साथ होती। इस्राएल के लोग खौफ के अंदर मुबतला थे, गुनाह का प्रेशर, मौत का प्रेशर, जिंदगियां तबाह, अजीरन, मामलात खराब। कोई आसमान से पैगाम बड़ा तसल्ली बख्श आता, बड़ा कम आता, मगर जो आता उसको भी ये साख शौम याद न कर दे। मगर ये शाया ने कहा आओ और आप चबूतरे पर खड़े हो गए। तमाम उम्मत ने सर झुका लिए और कहा ऐ नबी बता क्या पैगाम आया है। नबी के सर को आसमान की तरफ उठाया और मुस्कुराए और कहने लगे नहीं यार सख्त कलाम नहीं है। अब कान खोल कर सुनो, एक लड़का हमारे लिए तुवल्लद हुआ है। हालेलुया, हमको एक बेटा बख्शा गया है, सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब नशीर खुदा कादिर अब्दिया का बाप और सलामती का। हो गई है और आपको पता लोग आपस में मिले और एक दूसरे को चुमा कहने लगे सुना नबी ने क्या कहा है, लड़का हमारे लिए तवल्लद हुआ है। किन के लिए?
अपने ऊपर हाथ रखें, कहें लड़का हमारे लिए तो अलग हुआ। और आपको पता है यहूदी जब भी परेशान होते वो इस अपने बच्चों को कहते बेटा वो आयत निकाले जहां लिखा लड़का हमारे लिए तो अलग हुआ है। हालेलुया। जब भी परेशान होते कहते वो गल कट के सुनाओ जिथे लिखा लड़का हमारे, किन के लिए? उसी बोलो सारे, किन के लिए? उनके लिए होना था, आपके लिए तो अलग हुआ है। आप बड़े नायाब लोग हैं, समझ आ रही है? पैगाम आते रहे, नबी आते रहे। मुख्तर करता हूं, मलाकी के बाद इल्हाम बंद हो गया। इस 400 साल में कोई पैगाम आसमान से नहीं आया। मलाकी के 100 साल पहले कोई फरिश्ता आसमान से नहीं आया, और मलाकी से 400 साल पहले खुदावंद ने मौजज़ा किया था जमीन के ऊपर। समझ आ रही है आपको? अब निगाह आदम तरस गई है। गौर से सुनिएगा इस बात को। मैं जब भी इसको पढ़ता हूं मेरी आंखें नम हो जाती हैं। ये जो 400 साल का अरसा है ना, इसे इंटरटेस्टामेंटल पीरियड कहते हैं, खामोश दौर, अनबिब्लिकल दौर भी कहा जाता है। कुछ भी इस दिनों में नहीं हुआ। आप किताबें उठाएं, आपको पता चलेगा यहूदियों पर फर्ज था कि इन 400 सालों में वो मुंह आसमान की तरफ करें और दिन में 5 मरतबा मसाया के आने की दुआ करें। आप समझ रहे हैं? अच्छा, ये हुक्म कानूनी है। कलाम में लिखा दुल्हन और रूह और कलीसिया कहे कि आ, ये लिखा जी आखिरी पैगाम आपके लिए मुकाशवा में। अच्छा, अगर जो लोग नहीं कहते कि आ, ना वो दुल्हन है ना वो कलीसिया है, क्योंकि ये दोनों के लिए लिखा है। दुल्हन भी कहेगी आ और कलीसिया भी कहेगी आ। और ये वो भी कहते थे कितने साल? 400 साल मुंह आसमान की तरफ करके, बेटियां भी बेटे भी। कितनी दफा? 5 दफा आसमान की तरफ मुंह करके कहते जिसका वादा तूने किया है वो भेज दे। अब बर्दाश्त नहीं होता, अब हम परेशान हो जाते हैं। पर आपको पता खुदा तमाम काम मुकर्रर वक्त पर करता है। कलाम में लिखा है कि जब वक्त पूरा हो गया, हालेलुया, क्या हो गया? जी बोलो सारे, क्या हो गया? वक्त पूरा हो गया। खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो कंगारी से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ। आपको पता है उलमा लिखते हैं कि इधर बीबी की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई। यहूदी लोग अपने बच्चों की शादी मंगल के रोज शुरू करते थे। ये उनके नजदीक तीसरा दिन था। बाइबल पढ़िएगा घर जाकर, खुदा ने इस दिन में 2 दफा कहा था अच्छा है, अच्छा है। यानी जूश मानते थे ये डबल ब्लेसिंग वाला दिन है। कई बंदे मंगल को आराम है, ऐसा नहीं, बुध को आराम है, ऐसा नहीं है। कोई दिन भारी नहीं है। आप सारे यीशु के लोग हैं, सारे दिन यीशु के हैं। हालेलुया। ज़माने यीशु के हैं, साल यीशु के हैं, सदियां यीशु की हैं, निशान यीशु के हैं। कोई मंगल का देवता नहीं है, कोई बुध का देवता नहीं है। वो कहते हैं नहीं, ज़माने को कायम करने वाला हूँ, कोई दिन भारी नहीं है। अच्छा, ये तो चांद ग्रहण लग रहा है, गोदा में रौला भाइयों में कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं क्या करें, क्या करें? आपके बाइबल में लिखा हुआ है दिने सूरज ना तेनो सतावे और रात चंद भी ना। यहाँ ते एक ईमान ना रखो, गाना छड़ छोड़ो या दोनों तोड़ फोड़ो, आपका ईमान बहुत कुछ कर सकता है। आ रही है समझ? यहूदी लड़की की शादी 12 से 16, लड़के की शादी 20 साल के अंदर अंदर कवर। अब इनकी मंगनी हो जाती है। मंगनी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है यहूदियों की। टाइम नहीं है इस पर मैं बात करूं। अब आपको पता है वक्त पूरा हो गया। उलिमा बताते हैं कि खुदावंद ने आसमानों पर सारे फरिश्ते इकट्ठे किए और कहा आए मलाइका इकट्ठे हो जाओ। तमाम इकट्ठे हुए और जबराइल आगे आए और अपना सर खम किया। आपने जबराइल से कहा जबराइल आज जो मुद्दत के बाद पैगाम लेकर जाने वाला है, मगर याद रखना आज का पैगाम किसी एक कौम के लिए नहीं बल्कि ये पैगाम दोनों जहानों के लिए है। हालेलुया। तमाम जहानों के लिए ये पैगाम है। और ख्याल रहे जिस बीबी के पास तो जाने वाला है वो तहारा है, पाक है, उम्मुल मोमिनीन है और तूने जहां जाकर उसके सामने सर खम कर देना है। इससे पहले तू अंबिया के पास जाता रहा और नबी तुझे देख कर डर जाते थे, और अब जाकर उसको सलाम भी करना, क्योंकि आज के बाद जमीन के ऊपर सलामती का शहजादा जाने वाला है। हालेलुया।
शहजादे की आमद है और फरिश्ता आया। अगर तालीम ये सुनी तो फिर थोड़ा बाइबल बताती है फरिश्ता आया और बीबी के सामने खड़ा हुआ और सर झुका कर कहता है या मरियमा सलाम अलैका वकाना रब्बुका व तुहारा के बशमुल साइब, यानी मरियम तुझे पाक कर लिया गया है और तमाम जहानों से चुन लिया गया है, तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना और वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। हालेलुया। अब नजात दहिंदा की तकमील है और आप ज़मीन पर तशरीफ फरमा हुए। कलाम कहता है आप आए और आपको पता है ज़करिया ने नजात का गीत गाया। कलाम कहता है आपको शरीयत के मुताबिक हैकल के अंदर पेश किया गया। वहाँ एक शख्स है नाम शाऊन है, खुदावन के रूह को उसका वादा है कि जब तक तो खुदा के मसीह को ना देखे तो मर नहीं सकता, और उसने आपको गोद में उठाया और आपके चेहरे अनवर पर नजर की, जिस चेहरे के बारे में शायर में लिखा है तेरा रूप जमाने दे सब सोनिया तो में सोना है और लखा होन शाना वाले तेरे जया ना होना है। हालेलुया। आपके यीशु जैसा कोई नहीं है। आपने उठाया, गौर से देखा और कहा मेरी आंखों ने तेरी नजात, बोले बोले सारे, मेरी आंखों ने तेरी नजात, शाबाश, तेरी नजात, तेरी नजात देखनी है। और अब अपने खादिम को अपने कौल के मुआफिक रुखसत कर। खुदा के लोगों बातें यही खत्म नहीं हुई। बाइबल बताती है कि उन दिनों में चरवाहे रहते थे जो अपने परगल्ला की निगहबानी करते थे। इन चरवाहों के बारे में बाइबल की तारीख बताती है कि ये खास चरवाहे थे जो यहूदियों के सरदार थे और इन पर ये फर्ज था कि ये फसा की भेड़े पाले, और ये बड़े खास चरवाहे होते थे। और उस तरफ जाकर ये भेड़े, ये आम भेड़े नहीं थी और ना ये चरवाहे। कभी इस पर भी शर्मिंद होगा कि ये भेड़े कौन सी थी और आम क्यों नहीं थे। और कलाम कहता है आसमानों से मलाइका आए और आकर उनको कहने लगे, कलाम कहता है कि वो अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे और अपने अपने काम के मामूल में थे। याद रहे कि इन गडरियों के पास कभी कोई अच्छी खबर नहीं होती थी। ये जब भी लोगों के पास आते मनहूस खबर लेकर आते। इन गडरियों से बदबू आती थी, इनको नीच समझा जाता था, ये शहर से बाहर रहते थे। और याद रखिएगा बाइबल मुकद्दस की तारीख के मुताबिक ये खुदाबंद अपने खुदा का इंतजार कर रहे थे। फसा की भेड़े पालते, हर साल फसा की कुर्बानी होते। इधर से मलाइका आए और बाइबल में लिखा है रोशनी हुई, नूर हुआ। वो डर गए और कहने लगे कि ये कैसी रोशनी है। फरिश्ते ने पैगाम दिया और कहा आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी यानी नजात दहिंदा पैदा हुआ है। हालेलुया। और उसने सबसे पहले आकर कहा देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ। यानी इससे पहले छोटी खुशियां थे, मालिक के दो जहां का आना दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। इसीलिए हम कहते हैं आना तेरा मुबारक, ऐ दो जहान वाले ओ खुशियां मना रहे हैं दोनों जहानों वाले। हालेलुया। उनका आना मुबारक है। और बाइबल में लिखा है क्या ही आ रही है, यीशु ने तो फिर होगा, अगर यीशु ने तो फिर होगा। और आपको पता है मालिक और फरिश्तों का बड़ा गहरा ताल्लुक है। क्यों नहीं है? आप पैदा हुए फरिश्ते आए, आप रोजा रखा फरिश्ते खिदमत करने आए। हालेलुया। आप परेशान हुए फरिश्ते तकवीयत देने आए। आप जिंदा हुए, फरिश्तों ने बताया वो जहां नहीं जी उठा है। आप आसमान पर गए, फरिश्ते साथ गए और गलीली मर्दों को कहा आए गलीली मर्दों और की ऊपर खड़े देखते हो यही यीशु जो क्या है। इसी तरह वापस आएगा जब मालिक दोबारा आएंगे और फरिश्ते साथ आएंगे। याद रखिएगा आसमान वालों के काम आसमान वाले करते हैं और जमीन वालों के काम जमीन वाले करते हैं। इसका मतलब है वो आसमानी है और वो आसमान से आया है। अब बाइबल मुकद्दस बताती है ये वाकया थोड़ा आगे बढ़ता है और किताब अक़दस के अंदर लिखा है जब आप बड़े हुए आपने कई दफा कहा इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और बोले बोले क्या जी कई बार परस्तार तो परस्तिश कर देना तो कहना ना खुदा ऐसे परस्तार ढूंढ रहा है। क्यों जी क्या कर रहे नहीं जेड़े आगे ने वो ढूंढे गए बोलो सारे ढूंढने दिया है आपके अंदर वो गैर कौमों में ढूंढ रहा है। आप नजात दहिंदा पर ईमान है तो आप ढूंढ लिए गए हैं। हालेलुया। अपने तलफ्फुज़ और तरीके को दुरुस्त करें। ढूंढ रहा है और भाई तुझे ढूंढा है तो यहाँ पर खड़ा किया उसने। क्यों नहीं? तुझे तलाश किया है तो तुझे कहा है कि आ और मेरी प्रस्तिश कर। आपने कई दफा कहा था आपने फरमाया था इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने। हालेलुया।
बाइबल में लिखा है एक शख्स है निकोदेमस नाम है उसका, शरअ का आलिम है, सनहेड्रिन के 31 उलेमा का 71 उलेमा का बंदा है। और आपको पता रात को मालिक हयात के पास आया, और आपको पता कई बंदे मेरे को भी रात में आते हैं कलाम को से के तुम्हें निकल जाते हैं, कलाम और मेरा दिन भी रोशनी तो है क्यों नहीं रात में बुला के मैं ताड़ी गल नहीं कर रहा, मैं है शबीर दास नाल लगी सादी और सिख सु के बाद जाना चलो ठीक है आए समझ के नहीं। ये भी रात में आया, बंदे बाबा ईमान लाएगा, कलाम में लिखा सरदार उस पर ईमान ले आए, मगर इबादत खाना के निकाल दिए जाने के डर से इकरार नहीं करते थे। वो आके कहने लगा मालिक आंधियां सारी फजीलतें मसीह शुरू कर ली, कहने लगा आप सच्चे और आपका कलाम भी सच्चा और नेक है आप, और आपके बारे में क्या खूब है, आप खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आए हैं, आते फजीलतें मसीह ने कहा ठीक है, मगर जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो खुदा की बादशाही को कई बंदे दौला पाने ने ही गल्ला ना नजात मिलांगे, बोलो अभी देखा देखने नजात मिलांगे क्यों बस अजी बाबा दिए दांगे ता नजात मिल जाएगी। लो मसीह ने कहा ठीक है मैं सच्चा भी हूँ, सब कुछ ठीक है, मगर जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो खुदा की बादशाही को मैंने कहा फिर एक होना कि क्या बंदा हम वापस जाए, यानी उन्हें ऐसा की गल कर छोड़ी कि यार मालिक बे मतलब लैंग्वेजलेस हो जाए। मसीह ने कहा नहीं, खुदा से पैदा होना जरूरी है, पानी और रूह से पैदा होना। कई बंदे एवं आते हैं ए डाकू ने कड़ा बपतिस्मा लिया ही उन्हें भी दे वो एवं आ चढ़ाई ना, फिर तुम भी सलीब चढ़ो केले ठकवाओ कोड़े खाओ तो फिर आखो जाके यीशु जो तुम अच्छे चाहे तो मैनू भी ये ओ गल आसान है कि जो उसने कहा है कि बस तुम जाओ सब ब्रह्मों को शागिर्द बनाओ, समझ आ रही है कि नहीं। उसने कहा क्या कहा पानी और रूह से पैदा होना, और आपने बड़ी जबरदस्त उससे बात की, आपने फरमाया क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया को सजा का हुक्म दे, बल्कि इसलिए भेजा है कि उस पर ईमान लाएं और वो ईमान नजात का वसीला ठहरे। हालेलुया, यानी दावत आम है आपको कि आप यीशु के पास आए और नजात हासिल करें। बात आगे बढ़ती है, कलाम कहता है एक दिन आप सुहार के कुएं पर तशरीफ फरमा थे, औरत का नाम है फोतिया, सामरी औरत कहलाती है। औरतें शाम को पानी भरने आती हैं, गुनाह के लिए दोपहर को आई हुई है, गला साथ उठाया हुआ है, चलते चलते आई हजूर अनवर को बैठे देखा, कलाम मुकद्दस में लिखा है आपने कहा बेटी मुझे पानी पिला, और उसने कहा तू यहूदी होकर मुझ सामरी से, यानी लिबास बता रहा था आप यहूदी हैं। और बेटी देख तो सही, कान कलाम में लिखा हुआ है कि अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का, यानी पहले वो यीशु को सिर्फ मांग रही है यहूदी, जब आपने कहा अगर तू मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता, साथ ही कहती है खुदावंद मेरे पास कोई बर्तन नहीं, कुआं गहरा है और तेरी जात ऊंची है और हम निचले दर्जे के लोग हैं, और तू तेरा कौम तेरा शजरा हमसे तो हाथ नहीं मिलाता, और तुम बड़े ऊपर के लोग हो, तू हमें कैसे पानी दे सकता है। समझ आ रही है? वो बुले साले के ना मैं निवा तो मेरा मुर्शिद उच्चा असा ऊंचियां दे सकदाया, मैं सदके जावा उन्हां ऊंचियां दे जिन्हां नीवियां नाल हम सदके जाए वाले पर जो हम खाकसारों के दरमियान आया है। हालेलुया। उसने कहा ना जी अपने टॉपिक बदल लेते हैं, सुने जरा, पहले क्या मानी यहूदी, फिर कह दिया खुदावन वो पानी दे मुझे। उसने कहा नहीं अपने शोहर को बुला ला। उसने कहा मैं बेशोहर हूँ। कहा ठीक कहा तूने, 5 कर लिए, छठे के पास है, साथ ही कह दिया ए खुदावन, साथ साथ खुलता कर, बंदे दोनों जान ले असली यीशु नु मंदे कदी गिरजे ते आके को पता चला यीशु कौन है। समझ आई है कि जो सुखार दे को तो वो पहले आम यहूदी कहती है, फिर खुदावन मांगती है, फिर कहती है खुदावन, जैसे ही आप अंदर की बातें करते हैं कहते तू नबी मालूम होता है, और फिर अच्छा अगर तू नबी है बता प्रशिक्षण कहाँ करे। इस पहाड़ पर यरूशलेम में मालिक ने कहा पाप के परस्पर रूह और सच्चाई से प्रशिक्षण करेंगे, और वो उन्हें ढूंढता है। उसने कहा ये बातें तो ताहिब ने बतानी है, खरिस्तुस ने बतानी है। उसने कहा तेरे सामने खड़ा है। हालेलुया। वो गला छोड़ती है और अपना दुपट्टा जाकर सामरिया के अंदर लहरा देती है, और जब कोई लड़की या औरत अपना दुपट्टा लहराए लोग घरों से बाहर आ जाते हैं। उन्होंने कहा बाहर आओ, क्या हुआ है? कहा एक शख्स कुएं पर बैठा है, उसने मेरे अंदर की बातें जो मैं करती रही हूँ वो सब कुछ याद कर दिया। क्या मुमकिन है खरिस्तुस हो? वो तमाम लोग वहां पर आए और कलाम सुना, और बीबी से कहते हैं अब हम तेरे कहे पर ईमान नहीं लाते, हमने खुद देख लिया है ये फिल हकीकत दुनिया का नजात दहिंदा है। हालेलुया। इसका उठना बैठना चलना फिरना
मुझे नजात दहिंदा है। हालेलुया। बात यही खत्म नहीं हुई। मुबशर करता हूँ, कलाम कहता है आप ज़कई के घर बैठे हुए थे। ज़कई मसूल लेने वालों का सरदार था। मसीह ने मती को बुलाया। मती को जब यीशु ने बुला लिया तो ज़कई ने मती को लेटर लिखा, वो ये उसका शगर कहता तू कहाँ चल पड़ा है, तूने काम छोड़ दिया मसूल का, चल अपना हिस्सा अपने पास रख, मेरा हिस्सा मुझे दे। मती ने लेटर का जवाब दिया, उन्हें क्या, मैं अपने मालिक के बारे में ज्यादा नहीं कहता, मगर जब वो तेरे शहर आएगा एक नजर उसे देख लेना। हालेलुया। कभी पिंडा ने चौधरी के ग्राउंड चढ़े बोलो सारे बोलो, बंदा चौधरी होए, एमपी होए, वजीर होए, तो किकर ते चढ़े होए, गल समझ नहीं हो रही। उसको लेटर मोटिवेट कर रहा था, यीशु देखना है, यीशु देखना है, यीशु देखना है। इधर आप यरीहो के अंदर आए, कोहराम मच गया। कौन आया है? यीशु आया है। कौन आया है? वो देखना चाहता था कि कौन सा है, वो गुलर के पैर पे चढ़ गया। मालिक ने देखा, बलबीर सूफी कहता जो अखियां मसीना लड़ियां सारा कुछ का नीचे उतर, मुझे तेरे घर जाना है। वो कहते वो ज़कई यीशु को जानता है, वो एक रसूल लेने वाले के यहाँ जा उतरा। सब आप बैठे हुए थे, वो अपने चेहरे अनवर पर नजर करता है, जाकर कहता है मालिक मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और जिससे ना हक लिया है उसको बोलो सारे कि ना 4 गुना वापस करता हूँ। मालिक मुस्कुराया और कहा आज इस घर में नजात आई। क्या आया है? बोले क्या आया है? नजात। बंदियां ने कहा कि टीवी है, फ्रिजा, वाईफाई, एंड्रॉइड, आईफोन, एसी, ओरियो, क्लीन, डिस्टेंपर, डबल स्टोरी, हर चीज अवेलेबल है, मगर नजात नहीं है। शफा ले लो, शफा ले लो। खानदान बर्बाद है। बेटी माँ की बात नहीं मानती, बेटा बाप की नहीं मान रहा। और आपको पता है इतने गंदे ड्रेस, बाहर जाओ तो पता लगता है कि दूर ही कंडीशन आ रहे हैं। आपका कलाम कह रहा है ना मर्द औरत का लिबास पहने तो ना औरत अपना अपना पाना। आज मुंडे कुड़ियां बन गए, कुड़ियां मुंडे, क्यों जी? काम खराब हो गए। अगर ये घरों में निजात नहीं है, प्रॉब्लम है आपकी जिंदगी में। अच्छा कपड़े पहने रहे पादरी साहब आ ही छड़ के कुड़िए कपड़े नहीं सही, देखो आखा के कल्चर है। ऐसी बात है जी, कम डेरे की है जी, ऊंची बोल, आपने नहीं बोली की है कल्चर है। कल्चर आते और बदल जाते हैं। पहला कल्चर होता ही जाके वडेरिया ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ, ਜਦੋਂ ਨਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਦਾ ਘੁੰਡ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆਖਣਾ ਕਬੂਲ ਹੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨੇ ਆਛਣਾ ਆਹੋ ਕਬੂਲ ਹੀ, ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਆਖਣੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਆਛਣਾ। ਇਹ ਕਰਾਚੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਰੀ ਅਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਮਾ ਹੱਸੀ ਜਾਏ, ਹੱਸੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੱਝ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਵੱਡੇ ਘੁੰਡ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸਮਝ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਲਚਰ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਡ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਦੋ ਚੌਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। क्यों जी? कल्चर आते और बदल जाते हैं, जमाने आते और चले जाते हैं, मगर इसके बारे में लिखा है घास सूख जाती है, फूल कुमला जाता है, पर हमारे खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। हालेलुया। अगर इसमें लिखा है कि आपने हजारा लिबास पहनना है, तो जब तक आमद अब शाम सामने नहीं हो जाती, आप पाबंद हैं कि आप हजारा लिबास पहने। आप पर फर्ज है, क्योंकि लिखा लोग तुम्हें देखकर तुम्हारे आसमानी बात की तमजीद करें। की करें? आपको देखें तो पता चले ओ ये यीशु की शहजादी है, ये यीशु का शहजादा है, ये मांगा हुआ है, अलग किया हुआ है, सच्चा है, पाक है, और इसका उठना बैठना सब खुदावंद के लिए है। कि आपका यीशु आपसे पता लगा, नजात हो गई है, मालिक का है, सब कुछ हो गया। बातें और भी बड़ी हैं कि मैं नजात के लिए करता जाऊं। आपको पता है महंगाई बड़ी हो गई, बिल कितने आ गए, बड़े मामला खराब हो गए, वही ना महंगाई, सब कुछ महंगा हो गया। सबको बता दो जाके बड़ी महंगाई भी हो गई, नजात आज की मुफ्त मिल रही है। हालेलुया। मरीजान ने गुनाह को खबर दो फैज़ मसीहा की कि बिना कीमत शफा मिलती है, आए जिसका तीजा। नजात है, दर रहमत खुला हुआ है, आओ नजात पाओ, आओ नजात हासिल करो। आखिरी बात, जब मुल्क आजाद होते हैं तो इंसान कुर्बान होते हैं, बड़ी कुर्बानियां आती हैं। जब मजहबी तौर पर आजादी चाहिए तो आपको बर्रे कुर्बान करने पड़ते हैं। हकीकी आजादी के लिए बेटा कुर्बान हुआ है,
बस अगर तुम आजाद रहने के लिए बुलाए गए हो। आज बड़ी सारी गुलामियां हैं, अबलीस की गुलामी है, क्यों जी, नफरत की गुलामियां है, सब कुछ गुलामियों के अंदर है। इससे पहले कि एंड हो जाए और आप जमीन के अंदर चले जाएं, रहमत बंद हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, और उसके पास कलाम कहता है बस अगर तुम्हें बेटा आजाद करे तो तुम वाकई ही आजाद हो। आजादी चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, बोले सारे आप चाहते हैं कि हम आजादाना जिंदगी गुजारें। आप ये भी झंडे लहराएं, मगर एक झंडा वो भी है, नारे लगाओ और गाओ है, झंडा मसीह का लहराओ है। हालेलुया, यीशु आ रहा है। आए अपने कदमों पर खड़े हो जाए, भाई भाइयों से गले मिलें और बहनें बहनों से जोर से मिलकर कहें मुबारक हो यीशु आ रहा है। हालेलुया, मुबारक हो गई पर मिले सारे को आंखें बंद कर लें, आंखें बंद कर लें।